Good morning everyone. Today we will be discussing about the depreciation accounting with the help of an assignment. So this is simply, the question is, a company purchased a machine costing rupees 60,000 on 30th June and it further purchased a machine costing rupees 40,000 on 1st April 2018, and then it's another machine purchased on 30th June and amounting to rupees 30,000, and this is what the informations regarding the purchase of machine, and here it is all about the sales of the machinery, those who have which have been purchased. So on 1/4/2018 the company sold 1/5 of the machines, and this consists of the machine which is purchased on 30/6/2016. that means on 30th June the machine of rupees 60,000 was purchased, and that was again sold on 1st April 2018. Okay, then at rupees 2,000 and 2/3 of the machines. Now this is 1/5 of the machine which was purchased on 30th June 2017 amounting to rupees 60,000, and a single part out of the 5 part of that machines, the total value, that means 12,000 machinery amounting to rupees 12,000 have been sold. It means 12,000 machinery have been machinery of rupees 12,000 have been sold at rupees 2,000, and 2/3 of the machine was purchased on 1st April 2018 was sold for 10,000. So this will be 10,000 most probably. This will be 10,000. So this will be 10,000. Okay, it was fine, 10,000. So the rate of depreciations, yes, it is very important that WDV method is need to be applied here. So we will be applying WDV method, written down value method. This method will need to be applied, and 10% which is per annum basis, and then the company close accounts on 31st March each year. Okay, prepare the ledger accounts for the period. So this within this period, for this period we will need to prepare the ledger accounts. Okay, now first of all we are going to purchase and sell the machinery account. तो यहाँ पे हम लोग पहले तो machinery accounts बनाएंगे. तो we will have to put the entries regarding the purchase. This is the date, first date on 30th of June. This first machine was purchased amounting to rupees 60,000. So this is simply machinery account debit to bank account on 30/6/2017. यहाँ पे 60,000 होगा. Then okay, so another machine was purchased 40,000 of rupees 40,000 on 1st April. So we will have to go to the 1st April, but before 1st April the date 31st March, where the year end have to be end here on 31st March. So on 31st March we need to provide depreciations. So for that the entry will be depreciation account debit to machinery account. Here we have no informations regarding provisions for depreciations, and therefore we are simply providing depreciations on the assets account, that is machinery account. So machinery account simply will be credited and depreciation account will be debited. So depreciation account debit 4,500. How this 4,500 come here? We will see the calculations which is already done below. Yes, so this is the calculations regarding the depreciations. So first machine which was purchased on 30/6/2017 cost rupees 60,000, and now on 2018 this is the value of depreciations. So this is simply 60,000 into 10%, that means 6,000, but this machine remains with the company for 9 months starting from, so these 3 months, January, February, March, April, May, June. So these 3 months, after these 3 months of starting the commencement of the books of accounts, this machine was purchased. For that means 3 months के लिए हम लोग के पास machines नहीं था, पर 9 months मेरा पास था. So that 9 months will have to, for calculating this amount for 9 months. So this whole amount divided in for 9 months out of this 12 months. So 9 divided by 12. So in this way we are, in this way simply
we simply have this number, that's 4500. So this 4500 have been copied here. Yes, this is 4500. Anyway, so this is 4500. Then again, the rest amount is treated as balance, and this balance have been brought forward. Here it is carried forward and then brought forward as simple the ledger norms of balancing the ledger. Following the balancing of ledger, then we are coming to this point where we need to purchase again. That's first we purchase on 40,000 machinery amounting to rupees 40,000 was purchased on 1st April. Yes, we have done. Then again we need to purchase on 30th June, but we cannot go 30th June unless and until we sell the machine on the same date, because here the selling date is 1/4/2018. okay, so we'll have to, यहाँ पे पहले तो परचेज हो चुका है, पर मुझे जून पे यहाँ पे अगेन परचेज करने ऑन जून, बट वी कैन नॉट परचेज ऑन जून अनलेस एंड अनटिल वी पे द डेप्रिसिएशंस, वी प्रोवाइड फॉर द डेप्रिसिएशंस. So sorry, we provide for the details of selling. Yes, we have sold the machine on 1/4/2018. 1/4/2018 this machine was sold. So if the machinery was sold, then we can simply write by bank account if we want to justify the whole entry under the machinery account, but we need a separate account. We are thinking of like recording the whole entry in disposal account. That means machine have been disposed of, and therefore this account of disposal account have been prepared. Anyway, this is simply the machinery, the total amount of machines that need to be sold out is transferred in machinery disposal account. तो machinery disposal account में मुझे वही ट्रांसफर करना है जहाँ पे जो सेल हो रहा है. तो machinery किसका सेल हो रहा था? दो machinery सेल हुआ था. तो machine 1 of 12,000, तो 12,000 का मशीनरी सोल्ड हुआ था, पर यहाँ पे मैंने लिखा 11,000. दैट मीन्स यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पे शो किया. सो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मैंने रिटर्न डाउन वैल्यू शो किया, नहीं ना कि कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू प्राइस यहाँ पे शो हुआ है. तो हाउ टू कैलकुलेट दिस रिटर्न डाउन वैल्यू? सो फॉर दिस वी हैव अनदर कैलकुलेशन. सो दिस इज सिंपली मशीन 1 which is cost price is rupees 12,000. So 12,000, how this 12,000? This is 60,000, but this fraction of 1/5. So ये 1/5 फ्रैक्शन सोल्ड हुआ है, जो सेल हुआ है टोटल मशीनरी से, वो हमने निकाल लिया. कॉस्ट प्राइस उनका कितना है? तो 1/5 ऑफ द मशीनरी विच वाज सोल्ड इज 12,000 कॉस्ट प्राइस. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू. सो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगा? तो दिस इज सिंपली 12,000 into 12,000 minus 4,500. So how this 4,500? This is simply the depreciation. This is simply this depreciation. So depreciation minus करके मुझे जो मिलेगा वो होगा रिटर्न डाउन वैल्यू. पर ऑफ दैट रिटर्न डाउन वैल्यू वी नीड अ फ्रैक्शन ऑफ 1/5. 1/5 मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंटू कर लिया 1/5. तो मुझे मिल गया जो मशीन सोल्ड हो रहा है, सेल हो रहा है, तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है. तो रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 11,100. So this 11,100 we have put here. This 11,100 we have simply put here. Anyway, then we have sold another machine which was purchased on 1st April 2018. That means we have purchased another machine. This machine was purchased for rupees 40,000, and this was again sold, but a single fractions. So what is the fractional amount that have been sold? Here is, we have to go again here. Yes, this is the fractional amount. 2/3 of the machine have been sold. So 2/3 we calculated here. Out of this 40,000 we need the fractions of 2/3. 2/3 fractions मैंने यहाँ पे निकाल लिया. तो 2/3 of the cost price of the machines is the cost price of the machine sold out. जो machine सेल हुआ है उसका cost price कितना है, वो 2/3 fractions करने से निकल गया. तो 26,667 हो गया मशीनरी का कॉस्ट प्राइस जो मशीनरी सेल हुआ है. अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू. तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज सिंपली द रिटर्न डाउन वैल्यू. व्हाई दिस इज सिंपली रिटर्न डाउन वैल्यू? बिकॉज machine was purchased on 1st April 2018 and there was no depreciations regarding these machines. So regarding these machines there is no depreciations at all. So simply this is the return down value of the machines. So the return down value of the machine is 26,667, and this
amount we'll have to put here. So this is simply that amount have been copied from there. तो ये हो गया मेरा दो मशीनरी सेल्स हुए. तो मशीनरी अगर सेल्स करेंगे तो मेरा एंट्री क्या बनेगा, मेरा एंट्री सिंपली बनेगा जो मेरा मशीनरी था वो, अगर मेरा मशीनरी आता है तो मैं क्या लिखता हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन्स डेबिट होता है, मशीन्स डेबिट होता है, मशीन्स डेबिट, और हम लोग लिखते हैं टू बैंक. तो मशीन्स में जब परचेस करते हो तो टू बैंक और मशीनरी अकाउंट डेबिट होते हैं. पर अभी क्या हो जाएगा, मैं मशीन्स को सेल कर रहा हूँ तो सिंपली दिस मशीन्स विल बी ऑन this credit side, to machine, and this bank account will be debited, this bank account will be debited. Now we are not simply transferring the bank, we are not simply writing this bank account on the machinery account. machinery account पे मैंने यहाँ पे बैंक नहीं लिखा, rather we are using another account known as machinery disposal account. So instead of bank account we can simply write machinery disposal account. So machinery disposal account क्या हो जाएगा, this is debit and then to machinery account, that means to assets account, to machinery account. So this is simply, these entry have been transformed by using this machinery disposal account, which will be just like treated as bank account. But here instead of writing the bank account we are writing the machinery disposal account, where all the machines which have been sold during the year is disclosed here in this account. तो यहाँ पे हम लोग वो डिस्क्लोज करेंगे जो मशीनरी अलग अलग डेट पे सेल हुआ है. तो एनीवे यहाँ पे दो मशीनरी सेल हुआ है और दोनों ही 1/4/2018. तो दिस इज मशीन 2 एंड मशीन 1. सो यहाँ पे मुझे दो चीज चाहिए. पहले तो मुझे मैं मशीन सेल करने से मुझे बैंक मिलेगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक कितना मिलेगा, सो 12,000 मुझे पैसा बैंक में मिलेगा. कहाँ से आया, दिस 2,000 and 10,000 कहाँ से आया, मैं हम लोग एक बार देख लेंगे. यहाँ पे 2,000 and 10,000 दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन. सो दिस विल बी एज बैंक, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने जो भी लॉस या तो प्रॉफिट होगा हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस पे शो करेंगे. यहाँ पे लॉस हो रहा है, मशीन्स जो था प्राइस था 37,000 का मशीन, बट सेल करके मुझे मिला 12,000. सो देयर इज अ लॉस एंड दिस लॉस हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो दिस इज सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो बाय दिस वे वी हैव क्लोज दिस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्लोज हो चुका है. तो मशीनरी डिस्पोजल का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया था मशीन्स को, दो मशीन्स को मैंने ट्रांसफर किया था फ्रैक्शनल अमाउंट. सो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन व्हिच हैव बीन सोल्ड मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया था. दैट अमाउंट वी नीड टू बी ट्रांसफर्ड हियर. सो एंट्री क्या बन जाएगा तब, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट. तो मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ तो लिखना पड़ेगा क्या, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट को कैसे लिखना होगा, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बिकॉज वी कैन नॉट राइट machinery on the machinery account. So the another counterpart will have to write here, that is machinery disposal account. तो ये अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर्ड हुआ, ठीक है, सिंपली ये अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर्ड हुआ. ओके, फिर मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि 31/3/2019 तक मेरा डेप्रिसिएशन कितना हुआ. तो 31/3/2019 पे मैं जब डेप्रिसिएशन दिखाने जाऊंगा उसके पहले मैंने इन बिटवीन एक परचेस किया था जो परचेज हुआ था 30 जून 2018. तो परचेज का एंट्री पहले डालना है यहाँ पे. तो मैंने 30 जून 2018 परचेज का एंट्री डाला. परचेज कितना हुआ, 30,000 का परचेज हुआ सिंपली. ओके, सो आफ्टर दिस 30,000 परचेज द टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू, बिकॉज देयर इज नो डेप्रिसिएशन हियर, सो दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू. सो 1,25,500. सो दिस इज द टोटल अमाउंट वी पुट हियर. एंड देन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, दोज मशीन व्हिच हैव बीन ऑलरेडी बीन सोल्ड, इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा. अभी मुझे चाहिए कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा. तो इस साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, दिस वन. सो वी विल चेक द कैलकुलेशंस फॉर दिस. यस, तो मशीन्स 1 का 2019 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैसे निकलेगा. सो ये होगा 2019 का रिटर्न डाउन वैल्यू. ये 60,000 था, पर 60,000 से अभी कितना हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया अभी यहाँ पे दिख रहा है. सो 16 - 47. ओके, चेक 16. यस, 5,50,000 मेरा टोटल वैल्यू था रिटर्न डाउन वैल्यू. और वहाँ से
मुझे ये वाला वैल्यू माइनस करना है जो मशीन्स मैंने ऑलरेडी बेच दिया। तो मशीन्स जो मेरा पास था उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 55,500 और मैंने जो मशीन सेल कर दिया उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 11,100। सो ये वैल्यूज को माइनस करके मुझे मिलेगा कि टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू अभी कितना है। तो टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू है 44,400 और उसका 10% मैंने यहाँ पे निकाल लिया, 44,500 का 10%। तो मुझे मिल गया कि ये मेरा 2019 का मशीन 1 का मशीन 1 का डेप्रिसिएशन है। तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, जो मशीन्स मैंने सोल्ड किया उसको छोड़ के जो मशीन्स मेरे पास रह गया। दिस वाज माय टोटल रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन 2 और मशीन 2 मैंने सेल कितना किया, तो इतना सेल किया। तो सिंपली जो रहेगा कितना मशीन्स रह जाएगा, अभी एंटर करने से पता चलेगा, यस 13,333 मशीन्स, इतना अमाउंट का मशीन्स रह गया और उस मशीन्स के ऊपर में मुझे 10% लगाने से ये वाला अमाउंट निकल के आ जाएगा। इन द सेम वे थर्ड मशीन्स को मैंने तो सेल नहीं किया, तो थर्ड मशीन्स तो पूरी मेरे पास है, पर उसका ऊपर में मैंने क्या दिया था, सो दिस इज माय थर्ड मशीन्स और थर्ड मशीन्स का मुझे क्या करना है, सिंपली यही मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर में मुझे कितना करना है, 10% करना है। पर यहाँ पे भी मशीन्स कब खरीदा हुआ है वो देखना चाहिए। मशीन्स खरीदा हुआ है 36/2018, मतलब 36 पे अगर खरीदेंगे तो 3 मंथ्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे वो मशीन्स नहीं रहेगा। तो कितना मंथ्स रहेगा, 9 मंथ्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जून तो चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स हो गया। तो 9 मंथ्स तो डेप्रिसिएशन फ्रैक्शनल वैल्यू 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू निकल रहा है 25,200। सबको प्लस करने से मेरा ये सम करने से ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के तौर पे यहाँ पे शो करेंगे। ये हो गया टोटल वैल्यू। फिर बैलेंसिंग कर दिया मैंने, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फिर डेप्रिसिएशन कर दिया। तो डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, फिर सेम प्रोसेस, रिटर्न डाउन वैल्यू फिर निकालना है। कैसे निकालना है, जो पहले रिटर्न डाउन वैल्यू था उसमें से ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करके सेम फॉर्मेट होगा, दिस वन माइनस दिस वन, सो दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन। इन द सेम वे we'll have to write, see, this one minus this one and again this one minus this one. So we can simply find this value. Okay, सो दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू सिंपली। तो रिटर्न डाउन वैल्यू का अगेन 10% करके मैंने डेप्रिसिएशंस लगा दिया, सभी का 10% करके मैंने डेप्रिसिएशंस लगा दिया। तो बस सिंपली उतना ही है और कुछ नहीं। तो सभी का डेप्रिसिएशंस लगाना है, इन द सेम वे सभी का डेप्रिसिएशंस लगाना है 10% करके। टोटल मेरा डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो मुझे यहाँ पे पुट करके वैल्यूज निकाल लेना है, ठीक है। सो ये हो रहा है मेरा मशीनरी अकाउंट मैंने बना लिया और मशीनरी जो सेल्स हुआ वो डिस्पोजल अकाउंट्स में शो करना है। और इसका रिगार्ड मुझे वर्किंग नोट्स भी दिखाना है, जैसे कि कैलकुलेशंस ऑफ डेप्रिसिएशंस कैसे कैसे हुआ, सभी मशीन्स का मैंने अलग अलग दिखाया और टोटल जो डेप्रिसिएशंस हुआ वही मैंने यहाँ पे सिंपली चार्ज कर दिया। और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली हम लोग अगर मशीनरी को सेल्स करेंगे तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि बैंक आ रहा है और मशीनरी जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे वी कैन ऑल्सो यूज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। वहाँ पे मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोल के एक अकाउंट खोल लिया और उसमें मैंने क्या कर दिया, मशीन्स को ट्रांसफर कर दिया। तो मशीन्स को ट्रांसफर करने से एंट्री उल्टा हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मशीनरी हो जाएगा और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर बैंक अकाउंट की मैं मशीन सेल किया तो बैंक आना चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैंक अकाउंट मैंने लिख दिया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सो हियर वी हैव यूज्ड अनदर अकाउंट नोन एज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट या तो एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट एंड देयर बाय वी आर गिविंग ऑल द पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ द एसेट्स। तो यहाँ पे मैंने सेल्स जो एसेट्स मेरा हुआ फिक्स्ड एसेट्स वो मैंने सेल जैसे जैसे किया था मशीन 1 मशीन 2 को दिखाया, मैं यहाँ पे सिंपली टू मशीनरी अकाउंट बोल के दिस टू अमाउंट्स को ब्रैकेट में प्लस करके दिखा सकता हूँ। सो दिस विल ऑल्सो डू, दिस इज सिंपली सेम डेट, वी शुड नॉट राइट इन दिस वे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव रिटन इन दैट पर्टिकुलर वे। बट हम लोग कैसे लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट और दोनों अमाउंट को प्लस करके जोड़ देंगे। ये वाला अमाउंट कहाँ से आएगा, दिस अमाउंट इज सिंपली द रिटर्न डाउन वैल्यू, दिस इज सिंपली द रिटर्न डाउन वैल्यू। जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस जितना मशीन सोल्ड हो रहा है उसका जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द मशीन हैव बीन सोल्ड एंड अनदर पार्ट हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन विच डेप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज। तो यहाँ पे मैंने डिस्पोजल अकाउंट दिखा दिया, तो उसके साथ ही साथ
ये दिखाई दे रहा है कि जो मेरा मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू था उसमें से इतना मशीन चला गया, क्योंकि ये मशीन ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो बाकी जितना रह गया उसका ऊपर में मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया और सीडीबीडी मैंने कर दिया। सो दिस इज डन। तो यही था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रिगार्डिंग एन असाइनमेंट। वी विल डू लॉट मेनी असाइनमेंट्स, लॉट मोर असाइनमेंट्स anyway. So for this for today, up to this, thank you for watching, and to see another videos regarding any issues, you can subscribe my channel, you can put comments, and you can also write your queries on aklearnerschool@gmail.com. So till then, it's okay. So aklearnerschool@gmail.com. Simply you put your queries on there. I'll be solving that queries or making some other videos. Thank you for watching. Thank you so much.